Hello students, today I have a very beautiful poem from the pen of Nazim Ezekiel, Night of a Scorpion. Nazim Ezekiel was an Indian poet. He was Jewish by birth. He was a playwright also, editor, art critic. His father, Moses Ezekiel, was a professor of botany at Wilson College. His mother was also the principal of her own school. So his parents were educated one. So Ezekiel has number of collections to his credit. His first collection of poems titled A Time to Change was published by Fortune Press. Then he joined the Illustrated Weekly of India as an assistant editor in 1953 and he stayed there for 2 years. Then he published his second book of verses, 60 poems, the same year. Then he was the head of the Department of English in Mithibai College, Mumbai from 1961 to 1972. Third was The Third, published in 1959, was another anthology. Then The Unfinished Man, The Exact Home, Snake Skin and Other Poems, Hymns in Darkness, Latter Day Psalms and Collected Poems. These are some of his collections, poetic collections. Then he was awarded Sahitya Academy Award in 1983 for his poetry collection Latter Day Psalms. And Padam Shri Award he was given in 1988. He died in Mumbai in 2004. So this poem, Night of a Scorpion, is a very beautiful one having delicious Indian flavor in it. Ezekiel is actually recounting the night when his mother was stung by a scorpion and the reaction of the peasants. So the poem basically talks about how the poet recalls his mother, how he recalls the night when his mother was stung by a scorpion and the reaction of the peasants. His father, his mother, how they reacted to that situation. The peasants, enveloped in their superstitions, prayed and chanted for her recovery. His father was skeptic, rationalist. He tried every curse and blessing, powder, mixture, herb, hybrid, to cure the stung. Holy men performed the rites. After a day, the poison began to lose its effect, and in a final irony, the narrator's mother says, "Thank God, the scorpion picked on me and spared my children." Whereas all the peasants, everybody in the village is worrying for the mother, because she was stung by a scorpion. But the mother, when she finally recovered, she said, "Oh, thank God, scorpion stung me and spared my children." This is how every Indian mother behaves. हर इंडियन मदर इसी तरह से बिहेव करती है कि वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का पहले सोचती है और अपने आप को वो सेक्रीफाइस करती रहती है, अपनी चिंता नहीं करती है ना. So let's see what the poet says in this poem. See that scene, that delicious flavor, the Indianness with all its superstitions. Not only superstitions, behind those superstitions you will see that there is a feeling of fraternity, brotherhood, है ना. तुमको पता चलेगा कि उस जमाने में ऐसा होता था कि लोग कैसे एक दूसरे की चिंता करते थे, कैसे एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखते थे, कैसे किसी को दुख तकलीफ हो जाए तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते थे. गांवों में तो आज भी शायद ऐसा कुछ माहौल है. सिटीज में एक बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गया. लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हर किसी को सिर्फ अपने ही सेल्फिश एंड्स की चिंता रहती है, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती है ना. लेकिन उस समय में ऐसा था.
जब ये पोएम लिखी गई, है ना, वो जमाना वैसा था। तो लेट्स सी, द पोएट हियर रिकाउंट्स द नाइट when his mother was stung by a scorpion. Let's see. I remember the night my mother was stung by a scorpion. The poet says कि he recounts the night when his mother was stung by a scorpion. कि वो उस रात उसको याद है जब उसकी मदर को बिच्छू काट गया था. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. है ना, 10 घंटे तक बरसात होती रही और 10 घंटे की बरसात लगातार, स्टेडी रेन मतलब धीरे धीरे बरसात जो हो रही थी, 10 घंटे की लगातार बरसात से जो स्कॉर्पियन है वो सैक ऑफ राइस के नीचे आ गया रेंग रेंग के, है ना। गांवों में अनाज के बोरियां भरी रहती हैं घरों में, तो धीरे धीरे बरसात हो रही थी, बूंदाबांदी जैसे होती रहती है, लगातार ऐसे बरसात हो रही थी, तो जिसमें वो रेंगता रेंगता आ गया और राइस के सैक के नीचे छुप गया. पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क द रेन अगेन. पार्टिंग विद हिज पॉइजन, अपनी पॉइजन छोड़ के, कहाँ छोड़ी उसने पॉइजन? मदर को जो काट गया, है ना, मदर को जो डंक मारा उसने, तो उस तरह से हम क्या कह रहे हैं कि उसने अपनी पॉइजन मदर की बॉडी में छोड़ के और उसकी एक चमक की, वो डायबॉलिक टेल मतलब जो एक डेविलिश सी उसकी टेल दिख रही है, अंधेरे वाले कमरे में आया और फिर वो वापस रेन में चला गया. ही रिस्क द रेन अगेन, दोबारा फिर वो वापस रेन में चला गया. अब क्या हुआ, सीन क्या हुआ कि मदर को स्कॉर्पियन ने काट लिया. अब ये खबर पूरे गांव में फैल गई. The peasants came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Peasants, peasant मतलब सभी किसान, peasants मतलब सभी गांव के लोग, वो आ गए. कैसे आ गए? Like swarms of flies. यहाँ पर इसने सिमिली यूज की, देखो like वर्ड यूज किया ना, swarms of flies, मक्खियों के झुंड की तरह से सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, भागी चले आ रहे हैं. बज बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स. बज क्या है बेटा? ओनोमेटोपिया. हम इसको ओनोमेटोपिया कहते हैं. जब वर्ड की प्रोनाउंसिएशन से वर्ड के मीनिंग का आपको गेस होता हो तो उसको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं. वर्ड की प्रोनाउंसिएशन से, शब्द के उच्चारण से शब्द के अर्थ का आभास होता हो, है ना. तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, सभी गांव के लोग मक्खियों के झुंड की तरह से आ गए और सब गॉड का नाम लेने लगे 100 टाइम्स. 100 टाइम्स मतलब राम 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 जैसे लोग करते हैं. तो सब जने भगवान का नाम लेने लगे ताकि उस इविल का इफेक्ट पैरालाइज हो जाए. पैरालाइज का मतलब कम हो जाए, है ना, उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाए. With candles, देखो, with candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. With candles, पहले तो यही होता था, अब तो मोबाइल में लाइट होती है, पहले लोग कैंडल और लालटेन्स उठा के चलते थे. लालटेन उठा ली, कैंडल उठा ली, मोमबत्ती से, कैंडल से, है ना, मोमबत्ती से और ये लालटेन से लोग चल पड़े सब उनके घर की तरफ, पोएट के घर की तरफ, और वो उसको उठा उठा के देख रहे हैं, कैंडल दीवार के साथ करके, मोमबत्ती कह रही हूँ, मोमबत्ती कैंडल एक ही बात हुई, मोमबत्ती उठा के, ये लालटेन उठा के, है ना, उसको दीवार के ऊपर देख रहे हैं कि स्कॉर्पियन कहीं यहाँ पर तो नहीं है. ऑन द मड बेक्ड वॉल, देखो ये कितना सुंदर वर्ड है. मतलब तो वही है कि मिट्टी की जो कच्ची दीवारें बनी होती हैं, गांव के घर जो है वो मिट्टी के बने होते हैं. आजकल तो फिर ईंटों वाले पक्के मकान बनने लगे, पहले पक्के मकान किसी किसी के होते थे. तो अब तो ज्यादातर मकान कैसे होते थे? मड बेक्ड होते थे. दीवारें जो है वो मिट्टी की बनी होती थी और पुताई की होती थी उनके ऊपर, और वो बेक किससे हुई? धूप से हुई, है ना. तो
सब उन दीवारों पे, उन कच्ची दीवारों पे, कच्चे घरों में दीवारों के ऊपर लोग जो है लालटेन से और कैंडल से बड़ी बड़ी मतलब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि भाई वो स्कॉर्पियन तो कहीं दिख नहीं रहा, जिएंट स्कॉर्पियन शैडोज उस लालटन की और कैंडल की परछाई दिख रही है। तो वो शैडोज कौन सी हुई? उन लालटन्स की और कैंडल। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, है ना, कि उनको क्या दिखाई दे रहा है? जिएंट स्कॉर्पियन शैडोज दिख रही है, और वो जिएंट मतलब बड़े साइज में स्कॉर्पियन की शैडोज दिखाई दे रही हैं। अब ये कहने को है ना, लेकिन वो शैडो स्कॉर्पियन की शैडो नहीं है, वो तो लालटन की और कैंडल्स। ठीक है, दे सर्च फॉर हिम, वो उसको ढूंढ रहे हैं। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन स्कॉर्पियन तो कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक है, स्कॉर्पियन तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। दे क्लिक देयर टंग्स, क्लिक क्लिक वर्ड जो है ये भी ओनोमेटोपिया है। ओनोमेटोपिया फिर वही आप कहते हैं ना, दिस इज व्हाट, क्लिक का मतलब यही आ रहा है ना, तो अपनी टंग से कहते हैं सब एक दूसरे की तरफ देख के, क्योंकि सारे जने ही अपनी लालटन और कैंडल उठा के देख रहे हैं दीवारों पे घुमा घुमा के, तो फिर एक दूसरे को इशारा करते हुए एक दूसरे को कैसे बोलते हैं, है ना, तो दे क्लिक देयर टंग्स। अब क्या हुआ? अब सबके गांव वालों की एक, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस दिखाई दे रही हैं, कौन क्या सोचता है, सब ये आगे वाली लाइंस में देखो। With every movement that the scorpion made, his poison moved in the mother's blood, they said. क्या कह रहे हैं? With every movement that the scorpion made, his poison moved in the mother's blood, they said. कुछ पीजेंट्स क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन मूव करेगा वैसे वैसे उसकी मदर की बॉडी में जो ब्लड है वो मूव करेगा, और उस ब्लड में क्या हो गया? पॉइजन हो गई। किस वजह से पॉइजन हो गई? स्कॉर्पियन की वजह से। ठीक है, स्कॉर्पियन की वजह से। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। तो उनमें से कुछ क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन मूव करेगा उसकी पॉइजन, उसकी जहर जो है वो मदर के ब्लड में मूव करेगी। मे ही सिट स्टिल, तो उनमें से कई जने विश क्या कर रहे हैं? काश वो आराम से बैठ जाए, है ना, ताकि वो पॉइजन जो है बॉडी में मूव ना करे। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सैड। अब दे सैड कौन हो गए? वो जो पीजेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि काश तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं वो आज रात को जल जाएं, है ना, कि तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं वो आज रात को जल जाएं। किसमें जल जाएं? तुम्हारी पीड़ा में जो तुम सह रही हो। ठीक है, मे द सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सैड। सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। आपको ये पीजेंट्स क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारी दुख है, जो तुम्हारा दुख है वो तुम्हारे अगले जन्म के दुर्भाग्यों को डिक्रीज कर दे। काश ऐसा हो कि तुम्हारी जो सफरिंग है वो तुम्हारे नेक्स्ट बर्थ के, नेक्स्ट अगले जन्म के दुर्भाग्यों को कम कर दे, है ना। मे द सम ऑफ ऑल इविल balanced in this unreal world against the sum of your good become diminished by your pain. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good diminished by your pain. कि काश ऐसा हो कि तुम्हारे जो इस जन्म में बुरे कार्य हैं वो तुम्हारे अच्छे कार्य हो, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का एक संतुलन बन जाए तुम्हारी इस पीड़ा से। ठीक है, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर। फिर कई कह रहे हैं कि पॉइजन से तुम्हारे जो इच्छा शक्ति है ना, वो
प्योर हो जाए, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन इज सैड, या तुम्हारी जो एम्बिशन है, तुम्हारी जो आकांक्षा है, जो तुम्हारी डिजायर है, ये चीजें तुम्हारी प्योर हो जाएं। दे सैड एंड दे सैट अराउंड, और वो उसके आसपास बैठे थे। किसके आसपास बैठे थे? उसकी मदर के। ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, वो फर्श पे बैठे और उसकी मदर सेंटर में बैठी है। और पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर जने के चेहरे पे एक अंडरस्टैंडिंग सी है। पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि दुख के समय में कोई बातें नहीं करते, गप्पे नहीं लगाते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ सिर मिला हिला के या मुंह पे उंगली रख के या इशारों से ऐसे बात कर लेते हैं। तो गांव के सारे लोगों में सबसे क्या दिखाई दे रहा है कि गांव के लोगों में, सब पीजेंट्स में कितनी ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है, कितनी ज्यादा एक सहानुभूति है, सद्भावना है, एक भाईचारे की भावना है ना। सब उसके दुख से दुखी है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, है ना। मोर कैंडल्स, मोर lanterns, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस रेन। देखो कितनी सुंदर लाइन है। एवरी टाइम आई अप्रिशिएट दिस लाइन। मोर कैंडल्स, मोर lanterns, मोर नेबर्स, है ना। देयर इज a sense of urgency. This is called brevity of language, precise language, है ना। कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। मोर कैंडल्स, है ना, कैंडल्स भी आई जा रही हैं बहुत ज्यादा, और कैंडल आई जा रही है, कैंडल थोड़ा ना चल के आ रही है, लोग आ रहे हैं, है ना। कहना तो यही है, तभी वो कह रहा है मोर नेबर्स। मोर कैंडल्स, मोर lanterns, मोर नेबर्स, है ना। और मोर इंसेक्ट्स, कितना सुंदर है। मोर इंसेक्ट कहाँ से आ गए? इंसेक्ट मोर थोड़ा ना हुए, वो कैंडल से और लांटन से हर जना उस मड बेग्ड वॉल को दिख रहा है। मड बेग, उनके घर की जो दीवारें हैं, जो कच्ची दीवारें हैं, सब जने अपनी कैंडल से और लांटन से देख रहे हैं। चाहे 10 जनों ने देख लिया, तब भी 11वां जना जो आएगा, गांव के लोगों की एक खासियत होती है ना, कि हर जना अपनी तसल्ली करता है। तो हर जना जो भी नया आ रहा है, वो अपनी कैंडल लाया है या लांटन लाया है, उससे वो उस कच्ची दीवार पे, जो भी उस घर की दीवारें हैं, उसके ऊपर वो लगा के जरूर देखेगा। और वो दिखेगा क्या? वो परछाई दिखाई देगी, किसकी? कैंडल की या लैंटर्न की। तो वो परछाई कैसी है? वो इंसेक्ट जैसी है ना। तो इसलिए वो कह रहा है मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स एंड मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। देखो कितनी सुंदर लाइन है कि बरसात है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन लोगों के अंदर सहानुभूति और एक जो आपका एक कंसर्न है, वो इतना ज्यादा है कि वो बरसात में भी आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, क्योंकि सबको चिंता है ना, सबका कंसर्न है। द मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग ऑन ए मैट। ग्रोनिंग मतलब कराहना। मदर जो है वो दर्द के मारे कराई जा रही है और मैट पे बैठी है, चटाई पे बैठी है। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पावर मिक्सचर हब हाइब्रिड। मेरे फादर जो है वो स्केप्टिक हैं, रैशनलिस्ट हैं, तर्कशील व्यक्ति हैं, है ना। वो हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्स भी, ब्लेसिंग भी, हर चीज, मतलब पाउडर, मिक्सचर, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, सब कुछ यूज कर रहे हैं। इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन ऑयल, वो पैराफिन ऑयल भी डालते हैं मदर के उस कटे हुए बिटन टो। बिटन टो, टो मतलब पाम की उंगली जिसके ऊपर वो स्कॉर्पियन काट गया, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन ऑयल भी डाला एंड पुट ए मैच टू इट, और उसको आग भी लगाई ताकि वो, किसको? तेल डाल के, ताकि वो पॉइजन है तो वो खत्म हो जाए। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, है ना। मैंने देखा कि वो फ्लेम जो है, आग की जो लपट है, वो मेरी मदर तक भी पहुंच रही है। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेक द पॉइजन विद एन इनकांटेशन। इनकांटेशन क्या होता है बेटा? इनकांटेशन मतलब मंत्रोच्चारण। और फिर एक होली मैन, धार्मिक व्यक्ति भी आया हुआ है जो बहुत पूजा पाठ को मानता है, तो वो अपने सारे राइट्स, क्या होता है?
रिचुअल्स, परंपरा, मतलब जो भी करना है, धूप बत्ती करना है, पाठ करना है, मंत्र उच्चारण करना है, वो होली मैन जो है वो सब करने में मस्त है, करी जा रहा है ताकि वो जहर को के इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। टेम का मतलब कंट्रोल। तो कहता मैंने देखा कि कैसे वो होली मैन अपने मंत्रों उच्चारण से अपने सारे क्रिया कर रहा है ताकि उस जहर के इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। 20 घंटे के बाद क्या हुआ, उसका असर जो है खत्म हो गया। किसका? स्कॉर्पियन का। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन picked on me and spared my children. This last line is also very beautiful. It shows the irony, है ना? All the peasants, the whole of the village is worried for the mother, but the mother is worried for her children. कि पूरा गांव जो है वो मदर की चिंता कर रहा है कि उसको स्कॉर्पियन काट गया, और मदर है कि उसको चिंता बच्चों की है कि चलो मेरे को नहीं काटा, बच्चों को छोड़, मेरे को काटा बच्चों को छोड़ दिया, है ना? तो एक तो बात क्या हो गई, दिस शोज द आयरनी। आयरनी मतलब आप कुछ कर रहे हो और दूसरा कुछ हो उससे बिल्कुल उलट रहा है। दूसरी बात, दिस शोज द इंडियननेस also. This shows the characteristic of a typical Indian mother, है ना? इंडियन मदर की, इंडियन वुमन की एक ये स्पेशल क्वालिटी है जो शायद कमी है किसी में बाहर के कंट्रीज में अगर हम बात करें तो, कि भी मदर जो है, लेडी जो है, वो अपने आप को मेल्ट करती रहती है लाइक ए कैंडल, है ना? शी एंड्स हर लाइफ doing everything for her children and for her husband and for home and all that, है ना? और पूरी पोएम में तो तुमने देखा ही कि कैसे इंडियननेस दिखाई दी हमें, कि कैसे गांव के लोग आई जा रहे हैं सब जने लालटेन लेके, कैंडल लेके, है ना? उसको अपनी लालटेन कैंडल से हर जना खुद उस लालटेन और कैंडल को दीवार पे लगा लगा के अपनी तसल्ली कर रहा है कि कहीं स्कॉर्पियन यहाँ तो नहीं है, स्कॉर्पियन यहाँ तो नहीं है। एंड देन दे क्लिक देयर टंग्स, और कैसे ही आते ही सारे जने दे बज द नेम। कितनी सुंदर लाइन थी वो, जहां पर वो कह रहा है कि भी दे केम लाइक स्वैम ऑफ फ्लाइज एंड बज द नेम ऑफ गॉड, है ना? ये देखो यहाँ पर थी ना ये लाइन, यहाँ पे कह रहा है द पीजेंट्स केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज एंड बज द नेम ऑफ बज। बज कहते हैं बेटा, गले में यूं सेंसेशन सी होती है, बज, क्योंकि मक्खियों की भिन भिन को अपन बज, बजिंग कहते हैं ना, तो इसलिए इसको अपन कहते हैं ये ओनोमेटोपिया है। तो सब जने राम 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 जैसे पकड़ते हैं कि भी उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। सो दिस शोज द कंसर्न ऑफ द पीपल, है ना? कि ह्यूमैनिटी, एक लोगों के लिए कंसर्न होना, एक सिंपथी होना, तो ये चीज दिखाई दी। So all these and then you see the language, है ना? लैंग्वेज तुमको बताया, कितनी सुंदर लैंग्वेज पोइट ने यूज की, ये कितनी सुंदर लाइन थी, देखो, मोर कैंडल्स मोर लालटेन्स, मोर कैंडल्स मोर lanterns, more neighbors, more insects, and the endless way. I told you that this is the example of brevity of language, urgency it shows. कम शब्दों में ज्यादा गहरी बात कह देना और एक पूरा सीन प्रेजेंट कर देना। So I hope you understand the poem, है ना? So thank you. The notes will be given in the link given in the description box. There is a link, so the notes are there. Thank you.